پاکستان میں اس وقت کورونا کیسز کی کل تعداد 6,33,741 ہے۔ ملک میں اس وقت فعال کیسز کی تعداد 34,535 ہے۔ ملک میں اس وقت کیسز کی شرح 8.23% ہے۔ پورے ملک میں 39,742 ٹیسٹ اب تک کیے جا چکے ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 14.7% تک ہو گئی ہے۔ بڑھتے ہوئے کیسز کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کیا جائے اور حکومت ویکسین کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ پچھلے ماہ وفاقی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان دنیا کے ان 92 ممالک میں شامل ہے جہاں کووڈ-19 کی 92ویں قسم پائی گئی ہے اور اس وائرس کی منتقلی تیزی سے ہوتی ہے۔ ماہرین کے مطابق کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 70 سے 80% آبادی کو ویکسین لگا دی جائے۔ اگر ویکسین کا عمل سست روی کا شکار رہا تو ہم اس وائرس سے نجات حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹرز پینل موجود ہے اور انہی سے پوچھیں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے وہ کیا ہے، کیسی ہے۔ پروفیسر جاوید اکرم نے ہمیں جوائن کیا ہے، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے وائس چانسلر ہیں اور ممبر ہیں وفاقی حکومت کی سائنٹیفک ٹاسک فورس کے کووڈ-19 کے حوالے سے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق معاون خصوصی وزیر اعظم برائے صحت رہ چکے ہیں۔ ڈاکٹر رفیق خانانی نے ہمیں جوائن کیا ہے، وبائی امراض کے ماہر ہیں اور وہ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آف پاکستان کے صدر ہیں۔ بہت بہت شکریہ تمام ڈاکٹرز، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس اہم موضوع کے اوپر۔ سب سے پہلے آپ کی جانب آؤں گی ڈاکٹر ظفر مرزا، یہ جو پاکستان میں تیسری لہر آئی ہے اور ہم 92 ممالک میں سے ایک ہیں جہاں پہ یہ برطانوی جو ایک آپ سمجھ لیں برطانوی قسم ہے یہ پائی جاتی ہے، کیا یہ تیسری لہر اس کی وجہ سے ہی آئی ہے؟ جی بالکل، اس میں پری ڈومیننٹلی جو ہے وہ سو کالڈ برٹش ویریئنٹ ہے جس کی ٹرانسمیسیبلٹی یعنی کہ بیماری کا پھیلاؤ کی رفتار جو ہے اس ویریئنٹ میں بہت زیادہ ہے، تقریباً ایک اندازے کے مطابق 70% زیادہ ہے۔ اور اس وقت تیسری لہر میں چونکہ یہ پری ڈومیننٹ ہے اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ہی ہے۔ اچھا پروفیسر جاوید اکرم، ڈو یو اگری ود ڈاکٹر ظفر مرزا کہ جی یہ جو تیسری لہر ہے یہ اسی وجہ سے آئی چونکہ برطانوی جو قسم ہے وہ یہاں پہ پائی جاتی ہے، ساؤتھ افریقن قسم، اس کو اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا جی اگر ہم یہاں پہ جو ٹریول ہے وہ بین کر دیتے یا لوگوں کو جو پیسنجرز آ رہے ہیں ان کو ٹیسٹ کرتے جو ہم نے پہلے بھی شروع میں 2020 میں کرنا شروع کیا تھا؟ بہت شکریہ منیزے۔ دیکھیں اس لہر کی دو پریڈومیننٹ وجوہات ہیں۔ ایک جو جیسے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کہا وہ تو جو ویریشنز آئی ہیں 17 ویریشنز ہیں جو پہلے والی سٹرین تھا اس سے ابھی جو ابھی نہیں آئی، یہ کوئی 2.5 مہینے پہلے ساؤتھ افریقہ میں اور پھر یو کے میں، اور اس ویریئنٹس میں 3 میوٹیشنز بھی ہیں اور موسٹلی جو 7 کے قریب ویریشنز ہیں وہ وائرس کو آپ سے اٹیچ ہونے کی ہیں یعنی سپائک پروٹینز میں ہیں۔ تو جیسے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ 75% اس کا چانس زیادہ ہو گیا پھیلاؤ کا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر اس وقت جتنا بھی چانس تھا پرانے ویریئنٹ سے یہ اس کا زیادہ ہے، اور دوسرے اس میں ویریشن زیادہ آئی، اس کی جو کلینکل امپیکٹ آیا کہ یہ بچوں کو زیادہ افیکٹ کر سکتی ہے۔ تیسرا، اب کچھ پچھلے ہفتے سے ہمارے پاس یہ بھی ڈیٹا آیا کہ یہ اس کی ویرولنس بھی زیادہ ہے اور اس کی انوالومنٹ ٹو دی لنگ برونکیو الویولٹری بھی زیادہ ہے، اور اس لیے اس کی ویرولنس زیادہ ہے۔ یہ تو اس کی ایک وجہ ہے جس کے ہم کر سکتے تھے بہت کچھ لیکن ابھی کچھ نہیں ہم کر سکے۔ لیکن آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی بچوں کو بھی یہ جو قسم پائی جا رہی ہے یہ بچوں کو بھی لگ رہی ہے، آپ کچھ اس کے اوپر ایکسپینڈ کریں، یہ بتائیے کہ کیا بچوں کو کووڈ-19 کا وہ شکار ہو رہے ہیں یا خدا نخواستہ کچھ ایسے بھی کیسز سامنے آئے ہیں جہاں بچوں نے اپنی جان گنوائی ہے؟ دیکھیں جان تو ڈیفینیٹلی گوائی ہمارے اپنے ہاسپٹلوں میں گوائی، جن کو ہم وہ اب کی نہیں گوائی، وہ تو کوئی پچھلے 6 ماہ پہلے گوائی۔ ہمارے چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں موٹیلٹی ہوئی جس کو ہم کاواساکی سنڈروم کہتے ہیں، اس میں وہ فرق چیز تھی، وہ امیون میڈیٹڈ تھی کہ اگر بچے کسی کو یہ وائرس لگی اور وہ یوزلی 5 to 7 ایئرز تک تھے اور ان بچے وہ اس وقت تو ریکور کر گئے لیکن ایک
1.5 माह बाद उनके हार्ट को अफेक्ट हुआ और जो हार्ट की नालियां हैं खून की वो फूलना शुरू हो गई, जिसको हमने बाद में कावासाकी सिंड्रोम कहा, और हमें पता है कि वो कार्डियक डिजीज। मगर ये तंदुरुस्त बच्चे थे जिनको ये लगी? जी, ये तंदुरुस्त बच्चे थे या पहले से कोई ना कोई अंडरलाइंग डिजीज थी? ये तंदुरुस्त बच्चे थे, और अभी जो बच्चों को हम देख रहे हैं वो वही डिजीज खुदा न खास्ता इम्यून मीडिएटेड नहीं देख रहे, जो कि बहुत ही हाई मोर्टेलिटी रहती है। अभी यही डिजीज देख रहे हैं विद इंक्रीज्ड विरुलेंट स्ट्रेन। तो और इसमें जो हम बच्चे देखे हैं अभी लाहौर में, मैंने खुद भी इस वक्त भी हॉस्पिटल में देख ही रहा था, तो उनमें अक्सर ये देखा गया है कि ये जो जिन जिन जगहों पे, खासकर मीरपुर से और ऐसी जगहों से, गुजरात से, जहां बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जो पाकिस्तानी डिसेंट के यूके में सेटल्ड हैं, और वो वापस आए, शादियों के लिए आए, और अक्सर शादी जो है वो मेन कल्प्रिट है इनके फैलाव का, क्योंकि शादी एक ऐसी चीज है कि क्लोज कांटेक्ट भी होता है, बहुत ज्यादा लोगों का होता है, और दूसरा उस वक्त जब खाना खाया जाता है तो कोई मास्क नामी चीज पहनना मुमकिन ही नहीं होता, तो इसलिए ट्रांसमिशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। डॉक्टर खनानी, आपसे पूछूंगी कि देखिए स्कूल्स भी खोल दिए गए हैं, अब डॉक्टर जावेद अकरम कह रहे हैं कि बच्चों को भी ये लग रहा है, तंदुरुस्त बच्चे हैं जिनको जो कोविड-19 का शिकार हो रहे हैं, बाद में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, आप मुतालबा क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने तो कहा है कि जी मुकम्मल लॉकडाउन लगा दें, मगर इस तरह जिंदगी चलना भी बहुत मुश्किल है, आप क्या एडवाइस करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, प्रोफेसर जावेद साहब ने और मिर्जा साहब ने जो है ना बहुत ही अच्छा समराइज कर दिया है कि ये वायरस जो है ये हाईली ट्रांसमिसिबल भी है, और लोअर एज ग्रुप में और यंगर एज ग्रुप में जो है वो पेशेंट्स इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, और उसकी वजह से खास तौर पर जो है वो स्कूल्स और जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी गैदरिंग्स जो है वो बहुत ज्यादा हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती हैं। और जैसा कि शादियों का जो मैटर है वो डेफिनेटली उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और हमने कराची में जो है वो तहकीक की है, तो हमारी तहकीक तो ये कह रही है कि इट्स नॉट ओनली यूके वेरिएंट बट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट जो है ना उसके भी कुछ केसेस जो है वो हमने उसमें देखे हैं। और साउथ अफ्रीकन वेरिएंट के साथ तो एक और मसला जो है वो ये है कि कहा यह जाता है कि वो जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी भी उसमें काफी कम है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो खास तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी इंपोर्टेशन के ऊपर तो कंट्रोल जो है वो हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट करना चाहिए, जो कि हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। पिछले 6 महीनों से मुस्तकिल में तमाम मीडिया में और गवर्नमेंट अथॉरिटीज को पर्सनल लेटर्स लिख के इन्फॉर्म करता रहा हूं कि बाहर आने वाले और इम्पोर्टेड केसेस को रोका जाए, लेकिन पता नहीं हमारी गवर्नमेंट की ये प्रायोरिटी क्यों नहीं है। स्कूल्स को बिल्कुल स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करना चाहिए, लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं कि इस वायरस में जो है ना हमें वायरस को समझना पड़ेगा। ये वायरस ह्यूमन बॉडी में 3 वीक से ज्यादा सर्वाइव नहीं करती। अगर हम बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें ओवरऑल, सिर्फ स्कूल्स और यूनिवर्सिटी और कॉलेज की हद तक नहीं, ओवरऑल सोशल जो के लॉकडाउन करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करें और 3 हफ्ते के लिए करें सिर्फ, ताकि हम कम से कम जो है ना वो रमजान जो है ना वो थोड़ी बेहतर तरीके से गुजार सके। तो मेरा ये ख्याल है कि हाईली अप्रोप्रिएट टाइम के 3 हफ्ते का लॉकडाउन कर दिया जाए। तो ये डॉक्टर खनानी कह रहे हैं कि जी 3 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन करना चाहिए, क्योंकि ये जो वायरस है ये 3 हफ्ते तक जिस्म में रहता है, क्या यही हल है? और हम ये भी पूछेंगे कि अब वैक्सीन का अमल पाकिस्तान के अंदर इतना सुस्त क्यों रहा है, क्यों पाकिस्तानियों को बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे वैक्सीन के लिए, जबकि बाकी ममालिक के अंदर, साउथ एशिया ममालिक के अंदर भी वैक्सीन या मुफ्त मिल रही है या बड़े कम पैसों पे मिल रही है। ये हम पूछेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, स्पॉटलाइट है कोविड-19 के ऊपर। हमारे साथ एक डॉक्टर्स पैनल मौजूद है। डॉक्टर जफर मिर्जा, ब्रेक से पहले डॉक्टर खनानी ने कहा कि अगर आपने इस लहर को ऊपर उठने से रोकना है तो फिर आपको 3 हफ्ते का मुकम्मल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। डू यू एग्री? जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो रियलिटी है, जो हमारी सोशियोलॉजी है, जो हमारी इकोनॉमी है, सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस हद तक तो एग्री करता हूँ कि हमारे स्कूलों को, चूंकि इसकी ज़्यादा इम्कान है बच्चों निस्बतन कि बच्चों को भी ये इफेक्ट करता है, तो मेरा ख्याल है
स्कूलों को बंद करने का केस तो बनता है, लेकिन ये जो मुकम्मल लॉकडाउन है और ये लेना कि 3 हफ्ते के लिए अगर हम लॉकडाउन कर दें तो पाकिस्तान में इस बीमारी का सफाया हो जाएगा, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और ना ये मुमकिन है पाकिस्तान के अंदर। तो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होता तो ये 3 हफ्ते का लॉकडाउन बहुत सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन जो है वो तो अफोर्ड कर सकते थे, वो उन्होंने अब तक कर लिया होता। तो ये टू सिंपलिस्टिक टू से 3 हफ्ते के लिए बंद कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम, आपकी राय भी इस पे लेना चाहूंगी। जिस तरह डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि देखिए स्कूल्स बंद करना तो जायज है और इसका जवाब बनता भी है, मगर मुकम्मल लॉकडाउन मुमकिन नहीं होगा। आपकी राय इस पर? देखें स्कूल में मेरे ख्याल में ठीक है जरूर करें, लेकिन स्कूल्स को ऑब्वियसली हमने पूरा 1 साल जाया कर लिया है, तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए। हमें स्कूल्स में बहुत ज्यादा इजी है हमारे लिए एसओपीज को करना, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे भी रिलेटिवली कम फ्रॉम दे आर एजुकेटेड, और उसमें स्कूल्स में हमारी गाइडलाइन ये है कि आप बजाय 1 शिफ्ट के 3 शिफ्टें कर लें और उनकी जो ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं वो चीजें ऑनलाइन पढ़ाएं, ब्लेंडेड लर्निंग कर लें, लेकिन तदरीस का जो अमल है ये जारी रहना चाहिए। नहीं तो हम, अगर मैं मेडिकल यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूं, हम आगे डॉक्टर्स आपको कहां से प्रोवाइड करेंगे अगर हमने सब कुछ स्टैंड स्टिल कर दिया। ठीक है, मेरा ये ख्याल है बात समझ गई हूं, मगर चूंकि आप मेंबर हैं वफाकी हुकूमत की साइंटिफिक टास्क फोर्स के, क्या ये तजवीज आपने एनसीओसी को दी है कि जी आप अगर स्कूल्स खोल भी रहे हैं तो आप उनको टर्न बाय टर्न आप कुछ ऐसा सिस्टम बना ले जहां पे एक बच्चों का सेट आए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह कर ले? जी बिल्कुल, ये देखें हम तो एचईसी को ज्यादा देते हैं क्योंकि बीइंग ए यूनिवर्सिटी हम तो हायर एजुकेशन से, और बिल्कुल दी है, और हम इस पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंडर जितने कॉलेजेस हैं और जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्कूल्स हैं, वहां पे अमल दरामद कराया जाए, और वो इजी है, रिलेटिवली इजी है। डॉक्टर खनानी, चूंकि आप वबाई अमराज के माहिर हैं, आपसे पूछना जरूरी है कि वजीर आजम इमरान खान को पहला डोज लगा, उसके बाद वो कोविड-19 पॉजिटिव हो गए, तो एक डोज के बाद या एक इंजेक्शन के बाद कितनी देर बाद जो है वो आपकी एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, और क्या दूसरा डोज लगाना लाजिम है? जी देखें, जो 2 डोजेज इंजेक्शंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जिसका फर्स्ट डोज लगा था, तो वो उसकी इम्यूनिटी डेवलप होते होते सेकंड डोज के भी तकरीबन 2 हफ्ते के बाद जो है ना सफिशिएंट इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है, और वो भी 100% लोगों में नहीं होती, क्लोज टू 90% लोगों में जो है ना वो इम्यूनिटी डेवलप होती है। तो इस लिहाज से दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जिसको कि मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि अगर हमने इम्यूनिटी डेवलप करनी है तो वैक्सीनेशन करनी होगी, और मास वैक्सीनेशन करने का फायदा उसी वक्त होगा अगर हम ये पूरे नेशन में वैक्सीनेशन जो है वो विद इन 4 to 6 months जो है ना वो कर लें, और 70 to 75% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेट कर दें। हमारी रफ्तार बहुत कम है, और जब तक हमें कंट्रोल करना है तो हमें कोई पेच वर्क से काम नहीं चलेगा कि हम एक सिर्फ स्कूल्स को बंद कर दें और कॉलेजेस को बंद कर दें या फला इदारे को बंद कर दें। देखें, पूरे लेवल पर जो है ना, पूरे नेशनल लेवल पर लॉकडाउन करना आसान होता है रादर देन डूइंग इट इन पैचेस। तो ये बात आपने बड़ी अहम की है कि अगर आपने वैक्सीन करनी है तो आपको जल्दी करनी होगी ताकि इम्यूनिटी का जो लेवल है वो जो है पाकिस्तान उस तक पहुंच पाए। जफर मिर्जा साहब, जो वैक्सीन दस्तयाब अब हो रही है बाकी मुल्कों में मुफ्त हो रही है, हिंदुस्तान की तरफ देखें तो 250 रुपए की वैक्सीन है। पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने वजीर आजम को लिख भी दिया है, उन्होंने कहा है कि आपने प्राइवेट कंपनीज को कैसे ये इजाजत दे दी कि वो वैक्सीन खरीद के लाएं। अब जो स्पुतनिक है रशियन वैक्सीन, वो 8,500 रुपए की तकरीबन बिक्री है, उसके 2 डोसेज हैं, जबकि 1,500 रुपए की बाकी जगह पे वो बाकी मुल्कों में दस्तयाब है। तो जब आप हाई प्राइस पे लेके आएंगे और इतना मार्कअप देंगे प्राइवेट कंपनीज को, रिटेलर्स को, तो यहाँ पे जो आम लोग हैं वो कैसे वैक्सीन लगाएंगे? जी मुनीज़, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं इस पे जरा आपको अपनी तफसीलन राय देना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि यकीनन ये कहते हैं ना, इफ विशेस वर द हॉर्सेस, अगर हमारे पास इस तरह के वसाइल होते, अगर हमने
पिछली कई दहाइयों में अपने मुल्क के अंदर वैक्सीन डेवलप करने और वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया होता तो आज हम बाहर की दुनिया की तरफ न देख रहे होते, बल्कि बाहर की दुनिया हमारी तरफ देख रही होती, जिस तरह से इंडिया में हो रहा है। अब देखें, बात यह है कि यकीनन ये बात तो दुरुस्त है कि जितने कम अरसे में जितने ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा दी जाएगी उतना फैलाव को आप रोक सकेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अहम बात है हुकूमत के लिए, वैक्सीन चूंकि 100% इन केस ऑफ पाकिस्तान बीइंग द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हमें 100% वैक्सीन बाहर से मंगवानी पड़ रही है। ये भी एक लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ, वो ये है कि मैं जाती तौर पे मुझे नहीं मालूम कि मेरे पैनलिस्ट इससे मुत्तफिक होंगे या नहीं होंगे। मैं जाती तौर पे इसकी राय रखता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में प्राइवेट सेक्टर के अंदर इस मरहले पे जिस पे हम खड़े हैं, मेरा जाती ख्याल ये है कि वैक्सीन को प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं किया जाना चाहिए, बिकॉज इसकी वजह से बहुत ज्यादा अदम मसावात की फीलिंग पैदा होगी लोगों के अंदर। कुव्वत खरीद जो है वो एक क्राइटेरिया बन जाएगी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। हुकूमत को बहरहाल ये चाहिए कि वो रीडबल करें अपनी कोशिश और जहां से भी वैक्सीन मिल सकती है उसे लेकर आए। मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ इसके अंदर बड़ी मुश्किलात हैं, कुछ मुश्किलात पैदा कर भी दी गई हैं, लेकिन इसका हल इसके अलावा नहीं है कि रियासत खुद ये जिम्मेदारी ले कि वो तमाम वैक्सीन खुद इम्पोर्ट करे और लोगों को फ्री लगाए। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसको अवेलेबल करना इसका हल नहीं है। इससे मेरे ख्याल के अंदर एक्टिविटी के अदम मसावात के बड़े गहरे इसके ऊपर इम्प्लीकेशंस होंगी। डॉक्टर जावेद अकरम, जो डॉक्टर जफर मिर्जा कह रहे हैं कि प्राइवेटली आपको नहीं इसको प्रोक्योर करना चाहिए था, आपको चाहिए था कि आप हुकूमत जो है वो वैक्सीन फराम करती, मगर हमने देखा है कि अभी तक हुकूमत ने कोई ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया वैक्सीन का, सवाई चाइनीज वैक्सीन के हवाले से। ये दुरुस्त है और ऐसा क्यों है? जहां तक मेरा नॉलेज है, कैंसाइनो जिसकी हमने ट्रायल किए थे उसका ऑर्डर दे चुकी है और आई थिंक एनी डे वो डिलीवरी हो रही है। जहां तक ये सवाल है कि वेदर प्राइवेट सेक्टर शुड बी अलाउड और नॉट, तो देखें मेरी बात सुनिए, ये जो बड़ी बड़े बैंक्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, बड़ी बड़ी मिल्स हैं, उनको क्यों हम गवर्नमेंट पब्लिक मनी से लगवाएं, उनको खुद वो लें। लेकिन ये भी बात सही है कि प्राइस कंट्रोल स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, जैसे ट्रांसपेरेंसी ने पॉइंट आउट किया, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिव्यू द प्राइसिंग पॉलिसी। तो जितनी कॉस्ट है इंटरनेशनली वो उसी तरह ही इसकी ट्रांसफर प्राइस होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर मिर्जा, डॉक्टर रफीक हनानी, तीनों डॉक्टर्स का ये कहना था, ये मानना था कि जो वैक्सीन है वो सबके लिए दस्तयाब होनी चाहिए, वो इतनी महंगी नहीं होनी चाहिए कि आम पाकिस्तानी की पहुंच से बाहर हो, और अगर वैक्सीन का अमल असरअंदाज होना है पाकिस्तान के ऊपर और इफेक्टिव होना है तो फिर आपको जो है इसको सुस्त रवि का शिकार इसको नहीं होना चाहिए। जल्द अज जल्द आपको अपने लोगों को वैक्सीन करना चाहिए। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।